Hello students, welcome to our channel. I am Rekha Kola. Today we are going to start with a new chapter, Forest and Wildlife Resources. 10th क्लास का सेकेंड चैप्टर है ज्योग्राफी का. आज हम इसमें पढ़ेंगे वाइल्ड लाइफ रिसोर्सेज के बारे में और फॉरेस्ट के बारे में. ठीक है, सो लेट्स गेट स्टार्ट. We share this planet with millions of other living beings, starting from microorganisms and bacteria, lichens to banyan trees, elephants and blue whales. This entire habitat that we live in has immense biodiversity. We humans, along with all living organisms, form a complex web of ecological system in which we are only a part and very much dependent on the system for our own existence. For example, the plants, animals and microorganisms recreate the quality of air we breathe, the water we drink and the soil that produce our food, without which we cannot survive. Forests play a key role to the ecological system, as these are also the primary producers on which all other living beings depend. देखिए इसमें क्या बताया है कि इस ग्रह पर हम सूक्ष्म जीवाणु और बैक्टीरिया, जोंक से लेकर के वटवृक्ष, हाथी, ब्लू व्हेल तक करोड़ों दूसरे जीवधारियों के साथ रहते हैं. ये पूरा जो आवासीय स्थल है जिस पर हम रहते हैं अत्यधिक जैव विविधताओं से भरा हुआ है. ठीक है, मानव और जो दूसरे जीवधारी हैं एक जटिल पारिस्थितिक तंत्र का निर्माण करते हैं जिसका हम मात्र एक पार्ट है. अपने एग्जिस्टेंस के लिए इसके विभिन्न तत्वों पर निर्भर करते हैं. अगर हम एग्जाम्पल देखें तो वायु जिसमें हम सांस लेते हैं, जल जिसे हम पीते हैं और मृदा जो अनाज पैदा करती है जिसके बिना हम जीवित नहीं रह सकते हैं. ठीक है, पौधे हैं, पशु हैं, सूक्ष्म जीवी हैं. ठीक है, इनका पुनः सर्जन करते हैं. वन पारिस्थितिकी तंत्र में महत्वपूर्ण अपना जो है रोल अदा करते हैं क्योंकि ये प्राथमिक उत्पादक हैं जिन पर हमारे सभी जीव निर्भर करते हैं. आगे देखिए इसमें फ्लोरा एंड फाना इन इंडिया, यानी कि भारत में वनस्पति जात और प्राणी जात. If you look around, you will be able to find that there are some animals and plants which are unique in your area. In fact, India is one of the world's richest country in terms of its vast array of biological diversity and has nearly 8% of the total number of species in the world, estimated to be 1.6 million. This is possibly twice or thrice the number yet to be discovered. You have already studied in detail about the extent and variety of forest and wildlife resources in India. You may have realized the importance of these resources in our daily life. These diverse flora and fauna are so well integrated in our daily life that we take these for granted, but lately they are under great stress mainly due to sensitivity to our environment. देखिए अगर आप अपने आसपास देखेंगे तो आप क्या देखेंगे कि कुछ ऐसे प्राणी हैं, पौधे हैं जो आपके क्षेत्र में ही पाए जाते हैं. वास्तव में जो है भारत जैव विविधता के संदर्भ में विश्व में सबसे समृद्ध देशों में से है. ठीक है, यहाँ विश्व की सारी जैव उपजातियों की जो है 8% संख्या पाई जाती है. ठीक है, ये अभी खोजी जाने वाली उपजातियों से 2 या 3 गुना है. आप पहले भी भारत में जो वनों और वन्यजीव संसाधन जो पाए जाते हैं उनके क्षेत्रफल, उनकी किस्मों के बारे में पढ़ चुके हैं. ठीक है, आपने देखा कि भाई इन संसाधनों का, देखिए इन संसाधनों का आपके दैनिक जीवन में क्या महत्व है. आपने सोचा होगा कि इन संसाधनों का आपके दैनिक जीवन में क्या महत्व है. ये विविध वनस्पति जात और प्राणी जात हमारे हर रोज़ के जीवन में से इतने गुथे हुए हैं कि हम इसकी कदर नहीं करते हैं. ठीक है, पर्यावरण के प्रति हमारी जो असंवेदना के कारण पिछले कुछ समय से इस संसाधनों पर भारी दबाव बढ़ा है. आगे देखिए इसमें सम एस्टिमेट सजेस्ट दैट एटलीस्ट 10% ऑफ इंडियाज रिकॉर्डेड वाइल्ड फ्लोरा एंड 20% ऑफ इट्स मैमल्स आर ऑन द थ्रेटन्ड लिस्ट. Many of these would now be categorized as critical, that is on the verge of extinction, like the cheetah, pink-headed duck, mountain quail, forest spotted ostrich, and plants like Maduka insignis. Wildlife आगे देखिए variety of mahua, Hubbardea, Heptaneuron, a species of grass. In fact, no one can say how many species may have already been lost. Today, we only talk of the larger and more visible animals and plants that have become extinct. But what about smaller animals like insect and plants? अनुमान से कह सकते हैं कि भारत में 10% जो है वनस्पति जात और 20% स्तनधारियों को के लुप्त होने का खतरा है. इनमें से जो कई जो उपजातियां हैं तो नाजुक अवस्था में हैं और लुप्त होने के कगार पर हैं. ठीक है, इनमें चीता है, गुलाबी चीतीदार उल्लू है, मधुका इनसिग्निस यानी कि महुआ की जंगली किस्म है ये, और हुबरडिया हेप्टान्यूरोन यानी कि जो एक घास की प्रजाति है ये,
जैसे पौधे शामिल हैं। वास्तव में कोई भी नहीं बता सकता कि अब तक कितनी प्रजातियां जो है लुप्त हो चुकी हैं। आज हमारा ध्यान अधिक बड़े और दिखाई देने वाले प्राणियों और पौधे के लुप्त होने पर अधिक केंद्रित है, परंतु छोटे प्राणी जैसे कीट और पौधे भी इम्पोर्टेंट होती हैं। आगे देखिए, इसमें देखिए आगे, let us now understand the different categories of existing plants and animal species based on the International Union for Conservation of Nature and Natural Resources IUCN. We can classify as follows. यानी कि हम विभिन्न प्रकार के पौधे और प्राणियों की जातियों के बारे में पता लगाएं तो अंतर्राष्ट्रीय प्राकृतिक और संरक्षण और प्राकृतिक संसाधन संरक्षण संघ IUCN के अनुसार इनको निम्नलिखित श्रेणियों में विभाजित किया जा सकता है। देखिए, नॉर्मल स्पीसीज। नॉर्मल स्पीसीज में क्या है कि स्पीसीज हुज पॉपुलेशन लेवल्स आर कंसिडर्ड टू बी नॉर्मल फॉर देयर सर्वाइवल सच एज कैटल, साल, पाइन, रोडेंट एटसेट्रा। यानी कि ये वे जातियां हैं जिनकी संख्या जीवित रहने के लिए सामान्य मानी जाती है, जैसे पशु, साल, चीड़ और रोडेंट्स इत्यादि। एंडेंजर स्पीसीज, दीज आर स्पीसीज विच आर इन डेंजर ऑफ extinctions. The survival of such species is difficult if the negative factors that have led to a decline in their population continue to operate. The examples of such species are black buck, crocodile, Indian wild ash, Indian rhino, lion-tailed macaw, संगाई, ब्रो एंटर डियर इन मणिपुर। एंडेंजर्ड स्पीसीज मतलब संकटग्रस्त जाति। ये वे जाति है जिनके लुप्त होने का खतरा है, जिन विषम परिस्थितियों के कारण इनकी संख्या कम हुई है। यदि वे जारी रहती है तो क्या होता है कि जो जाति है इनका जीवित रहना मुश्किल हो जाएगा। ठीक है, काला हिरण है, मगरमच्छ है, भारतीय जंगली गधा है, गेंडा है, शेर है, शेर पूंछ वाला जो बंदर है, संगाई है, ये सारे के सारी जो जाति है ये इनके एग्जाम्पल हैं जो लुप्त होने के कगार पर हैं। ठीक है, आगे देखिए, वल्नरेबल स्पीसीज यानी कि सुबेद जातियां। These are species whose population has declined to level from where it is likely to move into the endangered category in the near future if the negative factors continue to operate. The examples of such species are blue sheep, Asiatic elephants, Gangetic dolphin. ठीक है, यानी कि यहाँ पे क्या बताया कि ये वे जाति है जिनकी संख्या घट रही है। यदि इनकी संख्या पर विपरीत प्रभाव डालने वाली परिस्थितियां नहीं बदली गई तो इनकी संख्या घटती रहेगी, तो ये संकटग्रस्त जातियों की श्रेणी में शामिल हो जाएंगी। और नीली भेड़, एशियाई हाथी, गंगा नदी की डॉल्फिन इस प्रकार के जातियों के उदाहरण हैं। ठीक है, आगे देखिए, एंडेमिक स्पीसीज, these are species which are only found in some particular area, usually isolated by natural or geographical barriers. Example of such species are the Andaman teal, Nicobar pigeon, Andaman wild pig, मिथुन in अरुणाचल प्रदेश। ये स्थानिक जातियाँ प्राकृतिक या भौगोलिक सीमाओं से अलग विशेष क्षेत्रों में पाई जाने वाली जातियां अंडमानी टील, निकोबारी कबूतर, अंडमानी जंगली सुअर, अरुणाचल के मिथुन इन जातियों के एग्जाम्पल हैं। ठीक है, अब देखिए एक्सटिंक्ट स्पीसीज। एक्सटिंक्ट स्पीसीज में क्या आती है कि दीज आर द स्पीसीज विच आर नॉट फाउंड after searches of known are likely areas where they may occur. A species may be extinct from a local area, region, country, continent or the entire earth. Example of such species are the Asiatic cheetah, pink-head duck. ये वे जातियां हैं इनके रहने की आवास में खोज करने पर ये अनुपस्थित पाई गई और ये उपजातियां स्थानीय क्षेत्र, प्रदेश, देश, महाद्वीप और जो है पूरी पृथ्वी से ही लुप्त हो गई हैं। ऐसी उपजातियों में एशियाई चीता, गुलाबी सिर वाली बतख शामिल है। ठीक है, आगे देखिए इसमें what are the negative factors that cause such fearful depletion of the flora and fauna. If you look around, you will be able to find out how we have transformed nature into a resource obtained directly and indirectly from the forest and wildlife. Wood, barks, leaves, rubbers, medicines, dyes, food, fuel, fodder, manure, etc. So it is we ourselves who have, आगे देखिए इसमें, who have depleted our forest and wildlife. The greatest damage inflicted on Indian forest was during the colonial periods due to the expansion of the railways, agriculture, commercial, scientific, forestry and mining activities. Even after independence, agriculture expansions continue to be one of the major causes of depletions of forest resources. Between 1951 and the 1980, according to the Forest Survey of India, our 26,200 square kilometers of forest area was converted into agriculture lands all over India. Substantial parts of the tribal belts, especially in the northeastern and central India, have been deforested or degraded by shifting cultivations. इसको झूम भी बोलती है, a type of slash and burn agriculture. देखिए इसमें क्या बताया गया है कि वे प्रतिकूल कारक कौन से हैं जिनसे क्या हुआ कि वनस्पति और प्राणी जात का ऐसा
भयानक हाश हुआ। ठीक है, इसमें क्या पढ़ेंगे कि यदि आप अपने चारों तरफ देखेंगे तो आप क्या देखेंगे इसमें कि हमने प्रकृति को संसाधनों में परिवर्तित कर दिया है। हमने क्या किया कि लकड़ी, छाल, पत्ते, रबड़, दवाइयाँ, भोजन, ईंधन, चारा, खाद इत्यादि जो प्रत्यक्ष और परोक्ष रूप से वनों और जो वन्य जीवन से प्राप्त होता है, इसलिए हम ही हैं जिन्होंने इनको नुकसान पहुंचाया। ठीक है, भारत में वनों को सबसे बड़ा जो नुकसान है वो उपनिवेश काल में रेल लाइन, कृषि व्यवसाय, वाणिज्यिक, वानिकी और खनन क्रियाओं में बढ़ोतरी से हुआ है। ठीक है, आज़ादी के बाद भी वन संसाधनों के सिकुड़ने से कृषि का जो है फैलाव महत्वपूर्ण कारकों में से एक रहा है। भारत में वन सर्वेक्षण के अनुसार 1951 और 1980 के बीच के जो है लगभग 26,200 स्क्वायर किलोमीटर वन क्षेत्र में कृषि भूमि इसको चेंज कर दिया गया। ठीक है, अधिकतर जनजातीय क्षेत्र विशेषकर पूर्वोत्तर और मध्य भारत में जो है स्थानांतरित कृषि, जिसको झूम कृषि भी बोलते हैं, उसको स्लैश और बर्ड खेती के चलते वनों की कटाई का निम्नीकरण हुआ है। यानी कि झूम कृषि, शिफ्टी कल्टीवेशन, स्लैश एंड बर्न एग्रीकल्चर एक ही नाम है। ठीक है, स्लैश एंड बर्न खेती के चलते भी क्या हुआ कि इनका निम्नीकरण हुआ है। ठीक है, आगे देखिए, large scale development projects have also contributed significantly to the loss of forest. Since 1951, over 5,000 square kilometers of the forest was cleared for river valley projects. Clearing of forest is still continuing with projects like the Narmada Sagar project in Madhya Pradesh, which would inundate 40,000 hectares of the forest. Mining is another important factor behind deforestation. The Baksa tiger reserves in West Bengal is seriously threatened by the ongoing dolomite mining. It has disturbed the natural habitat of many species and blocked the migration route of several others, including the great Indian elephant. Many forest and environmentalists hold the views that the greatest degrading factors behind the depletion of forest resources are grazing and fuel wood collections. Though there may be some substance in their arguments, yet आगे देखिए इसमें, yet the fact remains that a substantial part of the fuel fodder demand is met by lopping rather than by felling entire trees. The forest ecosystem are repositories of some of the country's most valuable forest produce, minerals and other resources that meet the demands of the rapidly expanding industrial urban economy. These protected areas thus means different things to different peoples and there lie the fertile ground for conflicts. देखिए, बड़ी विकास परियोजनाओं ने भी वनों को बहुत ज़्यादा नुकसान पहुंचाया। 1951 से नदी घाटी परियोजनाओं के कारण 5,000 वर्ग किलोमीटर से भी अधिक वन क्षेत्रों को साफ करना पड़ा है और ये प्रक्रिया अभी भी जारी है। और मध्य प्रदेश में जो है 40,000 हेक्टेयर से अधिक वन क्षेत्र अगर परियोजना के पूर्ण हो जाने से जलमग्न हो जाएगा। वनों की बर्बादी में खनन में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। पश्चिम बंगाल में बक्सा टाइगर रिजर्व डोलोमाइट के खनन के कारण गंभीर खतरे में है, जिसमें भारतीय हाथी भी शामिल है, कि आगमन मार्ग को बाधित किया है। ठीक है, अब देखिए इसमें बताया कि बहुत से वन क्षेत्र जो हैं बहुत से वन अधिकारी और पर्यावरणविद ये मानते हैं कि वन संसाधनों की बर्बादी में पशुचारण और ईंधन के लिए लकड़ी कटाई मुख्य भूमिका निभाते हैं। ठीक है, देखिए इसमें कुछ सच्चाई हो सकती है, परंतु चारे और ईंधन की लकड़ी की आवश्यकता पूर्ति के लिए पेड़ों की टहनियाँ काट करके इनकी पूर्ति की जा सकती है, न कि पूरे पेड़ काट करके। ठीक है, अब देखिए इसमें क्या बताया कि जो वन पारिस्थितिकी तंत्र जो है देश के मूल्यवान वन पदार्थों, खनिजों और अन्य संसाधनों के संचय कोष है, जो तेजी से विकसित होती है औद्योगिक शहरी अर्थव्यवस्था की मांग को पूर्ति करने के लिए बहुत ही जरूरी है। ये आरक्षित क्षेत्र अलग अलग लोगों के लिए अलग अलग मायने रखते हैं, विभिन्न वर्गों के बीच संघर्ष के लिए अनुकूल परिस्थितियां पैदा करते हैं। आगे देखिए इसमें हैबिटेट डिस्ट्रक्शन, हंटिंग, पॉचिंग, ओवर एक्सप्लॉयटेशंस, एनवायरमेंटल पॉल्यूशंस, पॉइजनिंग एंड फॉरेस्ट फायर्स आर फैक्टर्स which have led to the decline in India's biodiversity. Other important causes of environmental destructions are unequal access, inequitable consumption of resources, and differential sharing of responsibility for environmental well-being. Our population in third world countries is often cited as the cause of environmental degradations. However, an average American consumes 40 times more resources than an average Somalian. Similarly, the richest 5% of Indian society probably cause more ecological damage because of the amount they consume than the poorest 25%. The former shares minimum responsibility for environmental well-being. The question is, who is consuming what, from where,
एंड हाउ मच। भारत में जैव विविधता को कम करने वाले कारकों में वन्य जीवन की जो है आवास का विनाश और जंगली जानवरों का मारना, अकेटन करना, पर्यावरण प्रदूषण और दावानल आदि शामिल हैं। पर्यावरण विनाश के मुख्य कारकों में संसाधनों का असमान बंटवारा और उनका जो असमान उपभोग और पर्यावरण के रखरखाव की जिम्मेदारी में असमानता शामिल है। आमतौर से क्या देखा गया है कि देश में पर्यावरण विनाश का मुख्य जो है दोषी अत्यधिक जनसंख्या को माना जाता है। एक अमेरिकी नागरिक का औसतन संसाधन उपभोग एक सोमाली नागरिक के औसतन उपभोग से 40 गुना ज़्यादा है, ठीक है। और शायद ही भारत के 5% धनी लोग 25% गरीब लोगों की तुलना में अपने संसाधन उपभोग द्वारा पर्यावरण को अधिक नुकसान पहुंचाते हैं और इन 5% लोगों की पर्यावरण रखरखाव में भी कोई जिम्मेदारी नहीं है। क्वेश्चन ये है कि कौन, क्या, कहाँ से और कितना उपभोग कर रहा है, ठीक है। आगे देखिए इसमें, द डिस्ट्रक्शन ऑफ फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ इज नॉट जस्ट अ बायोलॉजिकल इश्यू, द बायोलॉजिकल लॉस इज स्ट्रांगली correlated with the loss of cultural diversity. Such losses have increasingly marginalized and impoverished many indigenous and other forest dependent communities who directly depends on various components of the forest and wildlife for food, drink, medicines, culture, spiritually, etc. Within the poor, women are affected more than, देखिए इसमें, मोर देन मैन, यानी कि यहाँ पे क्या बताया कि वन्य और वन्य जीवों का, देखिए वन्य और वन्य जीवन का जो विनाश मात्र जीव विज्ञान का विषय नहीं है। जैव संसाधनों का विनाश सांस्कृतिक विविधता के विनाश से जुड़ा हुआ है। जैव विनाश के कारण क्या होता है कि कई जो मूल जातियां हैं, वनों पर आधारित हैं, समुदाय जो है निर्धन होते जा रहे हैं और आर्थिक रूप से जो है हाशिए पर पहुंच गए हैं। ये समुदाय खाने पीने, औषधि, संस्कृति, अध्यात्म इत्यादि के लिए क्या करते हैं कि वनों और वन्य जीवों पर निर्भर हैं, ठीक है। गरीब वर्ग में भी महिलाएं पुरुषों की तुलना में अधिक प्रभावित है। आगे देखिए इसमें, in many societies, women bear the major responsibility of collection of fuel, fodder, water, and other basic subsistence need. As these resources are depleted, the drudgery of women increases. Sometimes they have to walk for more than 10 kilometers to collect these resources. This causes serious health problems for women and negligence of home and children because of the increased hours of work, which often has serious social implications. The indirect impact of degradation, such as severe drought or deforestation, induced floods, etc., also hit the poor the hardest. Poverty in these cases is a direct outcome of environmental destructions. Therefore, forest and wildlife are vital to the quality of life and environment in the subcontinent. It is imperative to adopt to sound forest and wildlife conservation strategies. देखिए इसमें क्या बताया गया है कि जो है कई समाजों में जो खाना है, चारा है, जल है और अन्य जो आवश्यकता की जो वस्तुएं हैं उनको इकट्ठा करने की जो मुख्य जिम्मेदारी किसकी होती है? महिलाओं की होती है, ठीक है। जैसे ही वन संसाधनों की कमी होती जा रही है, महिलाओं पर कार्य भार जो है बढ़ता जा रहा है। कई बार तो उनके संसाधनों को इकट्ठा करने के लिए 10 किलोमीटर से भी अधिक पैदल उनको चलना पड़ता है, ठीक है। इससे क्या होता है कि गंभीर स्वास्थ्य समस्याएं उनको झेलनी पड़ती हैं। काम का समय बढ़ने के कारण भी घर और बच्चों की उपेक्षा होती है, जिससे क्या होता है कि जो सामाजिक दुष्परिणाम हो सकती हैं। वन कटाई के परोक्ष परिणाम से जैसे सूखा है, बाढ़ भी गरीब तबके को सबसे ज़्यादा प्रभावित करता है। इस परिस्थिति में क्या होगा कि जो गरीबी है, पर्यावरण निम्नीकरण का सीधा परिणाम होता है कि इस स्थिति में गरीबी पर्यावरण निम्नीकरण का सीधा परिणाम होता है। भारतीय उपमहाद्वीप में वन और वन्य जीवन मानव जीवन के लिए बहुत ही कल्याणकारी है और ये भी आवश्यक है कि वन और वन्य जीवन के संरक्षण के लिए सही नीति अपनाई जाए। That's all for today. Thank you. Have a nice day.